Mananiya Shri Gaurav Gogeji to continue, please. धन्यवाद सभापति महोदय. I am taking part in the debate on the motion of no confidence motion against the Honorable Speaker. Part of the motion is that he has ceased to maintain an impartial attitude necessary to command the confidence of all sections of the House. That in his partisan attitude, he disregards the rights of the members of the House and makes pronouncements and gives rulings calculated to affect and undermine such rights. That he openly espouses the version of the ruling party on all controversial matters. Sir, this is particularly the matter, the way on February 2nd, the Honorable Speaker was presiding over the session when the Leader of Opposition was speaking. There was an expectation that the chair would be neutral. But often the LOP, and I have the entire debate here, sir, I would request that further parliamentary researchers can look at this uncorrected, not for publication, on 2nd March from our records, that from page 96 to page 114, the number of times the LOP was interrupted, sir. This is on record. If you want, I can place it on the table of the House and verify it. Sir, the Speaker continued to ask the LOP, can you please verify? You please verify. But the LOP, when he was talking about an ongoing global investigation into a serious case of child and women trafficking, he mentioned that in that ongoing investigation, a member of the government of India his name is mentioned. And in this global investigation, ministers whose name are being reported, they have resigned. It has happened in various countries that ministers have resigned, police investigations have occurred, but only in India that we can see that in this global investigation, when a minister is linked, there is absolutely no serious effort to verify whether these reports are true or not. Why is this government so afraid to conduct a simple investigation as to this ongoing? There's a Department of Justice American government is doing. Why should our government not do a similar investigation? And unfortunately, sir, while the LOP said that all questions would naturally end once the doubts were officially resolved through such verification, while the opposition respects the precious time of the House, while the LOP, Rahul Gandhi ji was still there, on his feet, the Speaker says, I will call out another Speaker. Sir, has it ever happened that LOP is on his feet, Rahul Gandhi ji is on his feet, and the ruling from the chair is that I will call out another Speaker, you please stick to your subject? You look at the record, sir, the number of times the Rahul Gandhi ji is saying, please let me speak, please let me speak, please let me speak. Is this the parliament tradition that we want to show? That the leader of opposition is pleading? Mics are being used to silence. So the Speaker's remark, I will call out another Speaker, delivered while the LOP was still standing to speak, stands in direct contradiction to the established rituals and moral standards of this House. Such a dismissal of the leader of opposition's right to be heard undermines the democratic spirit and impartial tradition of the Speaker's office. Sir, the same thing happened. The same thing happened to Honorable MP Shashi Tharoor. He was speaking a few days later, and then on 9th February, and in the middle of his speech, his mic was switched off. This mic, sir, in this House we say that the opposition has its say. In parliamentary norms in Indian Parliament, we say the opposition has its say. How can we say if you switch the mic off?
In the middle, you cut off the mic. On 9th February, it's on record, Dr. Shashi Tharoor says that his mic was switched off mid-speech, a move he claimed he has never seen happen in 7 decades of parliament. This is the newest thing that we are seeing. Sir, I would request the members of the ruling party to remember what Adarniya Sushma Swaraj ji said. Sushma Swaraj ji, while speaking beautifully on democracy, on भारतीय लोकतंत्र, उन्होंने क्या कहा? 15वीं लोकसभा के अंतिम दिन पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है, और वह भाव क्या है? वह भाव यह है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं मगर शत्रु नहीं हैं। हम विरोध विचारधारा के आधार पर करते हैं, हम विरोध नीतियों के आधार पर करते हैं, हम विरोध कार्यक्रमों के आधार पर करते हैं। अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग नीतियां हैं, सरकार बनाती है, अलग अलग कार्यक्रम बनाती है, उस पर हम आलोचना करते हैं। यह है भारतीय लोकतंत्र का मूल भाव। लेकिन आज चाहे वो हमारी कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी पार्टी हो, सपा पार्टी हो, जब भी उनके नेता खड़े होकर ऐसा सरकार की आलोचना करते हैं, नीति के आधार पर, विचार के आधार पर, उनको बोलने नहीं दिया जाता। मैं दोबारा याद करना चाहूंगा कि इस हाउस से क्या अपेक्षा है, स्पीकर से क्या अपेक्षा है। जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा, द स्पीकर represents the house, he represents the dignity of the house, the freedom of the house, and because the house represents the nation in a particular way, the speaker becomes the symbol of the nation's freedom and liberty. आज बोलने की अभिव्यक्ति कहाँ है इसे? हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि आज हमें चर्चा ये करनी चाहिए कि किस दबाव पर भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐसा ट्रेड डील किया जिससे हमारे किसानों को क्षति हुई, चोट पहुंची। ऐसा क्या दबाव बनाया गया? क्या एक विशेष उद्योगपति का नाम आया एक इन्वेस्टिगेशन पे? क्या ये दबाव था? क्या ये दबाव था कि एक विशेष मंत्री का नाम आया एक दूसरे इन्वेस्टिगेशन पे? क्या यह दबाव था? क्या था दबाव? और सवाल पूछने का ये तो उनका अधिकार है। और कहीं ना कहीं सर, आज जिस राजनीतिक माहौल में हम हैं, आज जिस राजनीतिक माहौल में हैं, हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व को सवाल सुनने की आदत चली गई। सवाल पसंद नहीं करते, बस अपनी राय रखते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं। लेकिन हम क्या पूछना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, वो हमारे बातों का कोई तवज्जो नहीं, या हमारे सदन के अंदर हमें वो अधिकार नहीं मिलता। अब हाल ही में ही कल आप उदाहरण ले लीजिए कि किस प्रकार से ये हाउस चल रहा है। कल हमने बार बार ये मांग की कि अभी मिडिल ईस्ट में एक वॉर आया है, एक पड़ोसी देश, एक मिडिल ईस्ट में जंग हो रहा है, एक पड़ोसी देश ये ऐलान करता है कि हमने अनुमति दी भारत को कि 30 दिन के लिए आप इन देशों से आप तेल आप निर्यात कर सकते हो। कितनी शर्मनाक बात है। कहां गई हमारी गरिमा? कहां गए वो विश्व गुरु? कहां गए वो 56 इंच का सीना का विदेश नीति? आज भारत जिसकी हमने विदेश नीति, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर, नॉन अलाइनमेंट पर, we send the largest peacekeeping force to the United Nations. We are the peace police force. और आज एक विदेश देश हमको अनुमति देता है कि हम किससे तेल ले, किससे ना ले, और देश का मुखिया चुप, और सदन पे कोई चर्चा नहीं। बार बार ऐसा क्यों होता है सर? और ये अफसोस की बात है कि सर, अब बात सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की नहीं, महिलाओं तक ये बात आ गई। आज महिलाओं, सांसदों के उद्देश्यों पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। आज अध्यक्ष महोदय जिनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आया, ओम बिरला जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जब प्रधानमंत्री के समय आया था कि वो अपनी बात रखें,
Honorable Speaker at that point of time, Om Birla, advised Prime Minister Narendra Modi not to come to the House for the motion of thanks reply, claiming credible information that certain women MPs intend to surround the Prime Minister's chair and create an unexpected situation. Shameful, sir. Shameful, sir. Shame, shame, shame. Shame, 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 sir. Shame, 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 sir. Shame, 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 sir. But the 2026 incident, is legally distinct because the Speaker preemptively advised the Prime Minister not to attend at all. That is a complete breach of the neutrality charge. ये किस आधार पर महिला सांसदों पर इस प्रकार का आरोप? और बहुत दुख की बात मैं कहता हूं सर, ये पहली बार नहीं है। इस सदन में बार बार जब एक महिला सांसद बुलंद होकर अपनी आवाज रखती है तो बार बार की वो सांसद एक महिला है, ऐसी टिप्पणी सदन के पक्ष से आती है, सदन के इस पीठ से आती है। यहां पर हर सदस्य, हर सांसद है, वो चाहे पुरुष हो या चाहे वो महिला हो। लेकिन जब भी एक महिला सांसद यहां पे खड़े होकर सत्ता पक्ष को चैलेंज करती है तो वो एक महिला है, उसको बार बार उसको याद दिलाता, ये यहाँ का ये परंपरा बन चुका है इस हाउस में। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। ऐसा पहले भी था कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और उनको बोलने का अवसर नहीं मिला। मैं उल्लेख करना चाहूंगा स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। जून 2004 में एक ऐसा ही व्यवस्था थी। प्रधानमंत्री उस समय के स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अपना बात रख नहीं पाए क्योंकि भाजपा वहां पे विरोध जता रहा था, लेकिन तभी भी वो सदन के अंदर उपस्थित थे, सदन से गायब नहीं हुए। सदन के अंदर वो उपस्थित थे, ये रिकॉर्ड में जाना चाहिए कि ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन उस समय के देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में उपस्थित थे। तो बार बार द ऑपोजिशन हैज पॉइंटेड आउट दैट देयर इज अ वेरी पैटर्नलिस्टिक टोन, एक बहुत नकारात्मक एक आवाज, एक नकारात्मक, आप किस प्रकार से उसको बोले, एक नकारात्मक तरीके से महिलाओं सांसदों को इस सदन के अंदर बोला जाता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। तो इसीलिए सर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैंने अपनी बात यहाँ पे रखी, आपने हमें इसकी अनुमति दी। इसके पश्चात भी कि हमने आर्टिकल 96 का ये हमने उल्लेख किया कि जब स्पीकर का रिमूवल का मोशन होता है तो वो प्रिसाइड नहीं कर पाता, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कौन से व्यक्ति चेयर पर बैठेंगे ये कैसे डिसाइड हो रहा है, आज तक हमें हाउस में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी बात हमने ये कही कि बार बार फरवरी 26 में 20 बार से ज्यादा आदरणीय राहुल गांधी जी को इंटरप्ट किया गया। रिकॉर्ड है कि वो बार बार बोल रहे थे मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। कभी बार बार उनको रूलिंग दिखाया जाता था कि आप कोर्ट नहीं कर सकते, उन्होंने आर्टिकल का कोर्ट किया, वो भी उन्होंने कोर्ट नहीं कर पाए। और वहां से सत्ता पक्ष से एक सांसद ने ऐसे किताबों को कोर्ट किया जो भारत में बैंड हुए, वो किताब कोर्ट हुए, लेकिन भारत के अंदर जो एक भारत के मैगजीन में एक आर्टिकल है वो कोर्ट नहीं कर पाए। और बार बार ये हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के भाषणों को रिकॉर्ड से एक्सपंज किया जा रहा है बार बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष के जो सांसद, जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रति जो आलोचना करते हैं, जो शर्मनाक बातें करते हैं, वो सारे रिकॉर्ड पे रहते हैं। तो इस प्रकार की इम्पार्शियलिटी हमारे सदस्य, हमारे लोकतंत्र मर्यादा के लिए उचित नहीं है। और ये अगर बार बार ये चलता रहा तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठ जाएगा। लोकतंत्र के संरक्षण में, सदन की मर्यादा के संरक्षण में, नेता प्रतिपक्ष और सारे विपक्ष के सांसदों के बोलने के अधिकार के संरक्षण में लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब आप और हमारे बीच में विचार विमर्श होगा। लोकतंत्र तभी कमजोर होगा जब आप हमारे आवाज को दबाओगे। तो हम लोकतंत्र के मजबूत करने में खेद प्रकट करते हुए ये अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जी के खिलाफ नहीं, लेकिन जिस प्रकार से सदन की संचालन हो रही है उसके खिलाफ और सदन की मर्यादा के हित में हमने इस मोशन को आज हमने समर्थन किया हुआ है। धन्यवाद।
धन्यवाद जी।